हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। कल हमने लास्ट 50 करंट अफेयर्स देखे थे। आज ही उसके आगे के 51 से पूरा 100 करंट अफेयर्स है। तो आई होप आपको वो लास्ट वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए मैं आगे के करंट अफेयर्स कंप्लीट करने जा रही हूँ। 51 से 100 पूरा अक्टूबर आपका करंट कवर अप हो जाएगा। लास्ट नवंबर ऑलरेडी आपका डन है, अक्टूबर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सितंबर अगस्त सारे जो मतलब जितने भी एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट है ना 6-7 महीने के सारे करंट अफेयर्स के वीडियोज़ आपको इसमें मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन से। Which of the following two freight corridors are currently under construction by the Ministry of Railways in India? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, सदर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। यानी कि अगर हम लोग बात करें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में, तो ईस्टर्न कॉरिडोर या सदर्न, वेस्टर्न या फिर नदर्न, ईस्टर्न या फिर वेस्टर्न, और सेंट्रल डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की फ्राइट कॉरिडोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो है दो फ्राइट कॉरिडोर्स है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स एंड द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following has become the first district in Gujarat to introduce health ATMs? Options are Junagadh, Jamnagar, Surat and Kutch. Its correct answer is option A, Junagadh. Next question is, why did Australia's referendum to recognize indigenous people in the constitution fail? Options are lack of water turnout. B option है a majority of voters rejected the proposal. Option C, technical issues with the referendum process. And option D, the indigenous community did not support the proposal. Its correct answer is option B, a majority of voters rejected the proposal. Next question है, World Food Day celebrated on dash to commemorate the date of the founding of the United Nations Food and Agriculture Organization in 1945, October 12, 14, 16 and 18. तो its correct answer is option सी, अक्टूबर 16। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। याद रख लेना ये डेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट जीन थेरेपी ट्रायल? ऑप्शंस आर ट्रीटिंग hearing loss caused by mutations in the OTOF gene, screening newborn babies for hearing problems, developing a new cure for all the forms of deafness, investigating the genetic cause of auditory neuropathy. Its correct answer is option A, treating hearing loss caused by mutations in the OTOF gene. Next question is, recently the first ever ship was flagged off at the rupees 7,700 crore deep water international Vizhinjam port in. Options are Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala and Tamil Nadu. Its correct answer is option C, Kerala. Next question है, recently Golmoy Gaiful Shilu Kabui has become the first tribal woman appointed as a judge in कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कर लेना क्योंकि एक तो फर्स्ट वुमेन भी है और ये ट्राइबल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ की जज बनी है? गोलमई गाइफुल शिलू काबुई। ये बनी त्रिपुरा हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट और मणिपुर हाईकोर्ट। इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मणिपुर हाईकोर्ट में ये फर्स्ट वुमेन और ट्राइबल जज है। बात ये कि फर्स्ट वुमेन ट्राइबल है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द रशियन ओलंपिक कमिटी बैंड बाय द इंटरनेशनल Olympic Committee with immediate effect? Options are for the involvement in a doping scandal during the 2022 Winter Olympics, for recognizing regional organization from 4 territories annexed from Ukraine, for violating IOC's यानी कि International Olympic Committee Code of Conduct during the opening ceremony of 2022 Summer Olympics, and for refusing to participate in the 2024 Summer Olympics in Paris. Its correct answer is option B, for recognizing regional organizations from 4 territories annexed from the Ukraine. तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? और जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, फॉर रिकॉग्नाइजिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 4 टेरिटरीज अनेक्स फ्रॉम यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज फर्स्ट रैपिड रेल ट्रेन रैपिडेक्स? इट मार्क्स द इनॉग्रल जर्नी ऑफ 17 किलोमीटर प्रायोरिटी corridor in Ghaziabad and introduce a new premium coach configuration with reclining seats. It is the first train to be operated solely by women passengers and is a part of Delhi Meerut Rapidex network aimed at reducing travel time within the NCR. Its correct answer is option A. It marks the inaugural journey of 17 kilometer priority corridor in Ghaziabad. Next question, according to Global Hunger Index 2023, what is India's ranking among the surveyed countries and what does its score indicate? Options are, India is ranked 60th with a moderate level of hunger, India is ranked 111 with a serious level of hunger, India is ranked 81st with mild level of hunger, and India is ranked 125 with a critical level of hunger. Its correct answer is option B. India is ranked 111 यानी कि 111 रैंक है इंडिया की द सीरियस लेवल ऑफ हंगर के साथ। फोर्थ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतने पीछे 111 पोजीशन पर है विद अ सीरियस लेवल ऑफ हंगर के साथ। Next question है, name the operation launched to facilitate the return of Indian citizens who wish to return from Israel that involves special charter flights and arrangements to ensure the safety and well-being of Indian nationals abroad. Operation Ajay, Operation Safety, Operation Vijay, Operation Bharat. Its correct answer is option A, Operation Ajay. Next question is,
Which of the following states approved the construction of 1000 km high speed economic corridor road project under the Assam Mala project? Options are Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Mizoram. Its correct answer is option A, Assam. Next question is, recently an 8-foot tall statue of Mahatma Gandhi has been unveiled at Tolstoy Farm in South Africa, Canada, USA and Japan. Its correct answer is option A, South Africa. टॉल्स्टॉय फार्म जो है गांधी जी का वो साउथ अफ्रीका में ही है, तो वहाँ पर एक 8 फुट टॉल स्टैचू जो महात्मा गांधी का अनवील किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड स्पेस पोर्ट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो विच विल बी डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए डेवलप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर विल कम अप इन कहाँ पर? केरला में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में एंड महाराष्ट्र में. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, तमिलनाडु के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑफशोर कैंपस ऑफ द IIT विल बी ओपन इन मेक्सिको सिटी, काबुल, zanzibar एंड शिकागो. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, zanzibar. और कौन सा IIT ओपन हो रहा है? IIT मद्रास. ये बाहर जो है, इंडिया के बाहर जो जहाँ पर ओपन होने वाला है दैट इज zanzibar में. ये मैंने वीकली वाले में भी करंट अफेयर्स में भी कवर अप किया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि UNGA डिक्लेयर डैश एज द इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज गर्ल्स राइट्स एंड यूनिक चैलेंजेस गर्ल्स फेस अराउंड द वर्ल्ड. October 7, October 9, October 11 and October 13. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, October 11. यानी कि 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर द गर्ल चाइल्ड रिकॉग्नाइज किया UNGA ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, October 11 अक्टूबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमंग द फॉलोइंग वन द 2023 F1 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप टाइटल? मैक्स वर्स्टेपन, नेल्सन पिकेट, जैक ब्राहम एंड ऑस्कर पियास्ट्री. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मैक्स वर्स्टेपन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन? Options are South Africa, Malaysia, Pakistan and Mauritius. Correct answer is option C, Pakistan. Next question is, what is the key factor that contributes to the unique taste of Udaan Gudi Pankarupati that has been given as a GI tag? The use of modern strategies in the preparation process, the presence of rand sand dune soil in the region, the addition of the triple superphosphate in the phosphoric acid and the high moisture content in the atmosphere. क्या key factor है जिसका unique taste जो है उडान गुडी पनांग करुपति को जो मिलता है GI टैग? इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, द प्रेजेंस ऑफ रेड सैंड ड्यून सॉइल इन द रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेडिशनल क्राफ्ट फ्रॉम JI यानी कि जम्मू एंड कश्मीर JNK हैव रिसेंटली रिसीव द ज्योग्राफिकल टैग? GI टैग किसको मिला है? कानी शॉल फ्रॉम श्रीनगर, बसौली पेंटिंग एंड चिकरी वुड फ्रॉम राजौरी डिस्ट्रिक्ट, पेपर माइश फ्रॉम पूंछ एंड डिजाइनर कारपेट्स फ्रॉम अनंतनाग. इट्स ऑप्शंस आर ऑप्शन बी. करेक्ट आंसर इसका बी है, बसौली पेंटिंग एंड चिकरी वुड फ्रॉम राजौरी डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड डैश साइंड द MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस, ग्रीन एंड क्लीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन्स. किसके साथ इंडिया ने साइन किया है? अर्जेंटीना के साथ, सऊदी अरेबिया, UAE एंड USA के साथ. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सऊदी अरेबिया के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक गैदर इन डैश फॉर द फर्स्ट एनुअल मीटिंग्स ऑन अफ्रीकन सॉइल इन 50 years. कहाँ पर मिले IMF एंड वर्ल्ड बैंक? अल्जेरिया में, मोरक्को में, साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मोरक्को में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट लॉ एनफोर्समेंट चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स काउंसिल इज लॉन्च्ड इन लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद एंड बेंगलुरु. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हैदराबाद. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग इंडेक्स हु इज द रिचेस्ट इंडियन वुमेन? अनु आगा, रोशनी नदा, सुधा मूर्ति एंड सावित्री जिंदल. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सावित्री जिंदल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली डिक्लेयर्ड द गैंगेटिक डॉल्फिन एज द state aquatic animal? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड असम. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश. जो गैंगेटिक डॉल्फिन है उनको स्टेट एक्वाटिक एनिमल और जिसने डिक्लेयर किया दैट इज उत्तर प्रदेश. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हु हैज रिसीव द Spinoza Prize, the highest distinction in Dutch science for her work in the field of climate change at a ceremony in the Netherlands. Options are Dr. Geeta Mukherjee, Dr. Jyotika Gupta and Dr. Alankrita Mathur and Dr. Rishita Ghatke. Its correct answer is option B, Dr. Jyotika Gupta. Next question है, recently Yak Churpi, Khamti rice and Tangsa textile from Dash have been granted the GI tag मिला है by GI registry को. तीनों को GI tag मिला है, याक चुरपी को, खामती राइस को, तांगसा टेक्सटाइल. कहाँ से बिलोंग करते हैं? नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश.
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को कवर कर रहा है पहला क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। देख सेकेंड ये जीआई टैग के बारे में पूछा तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेमोरियल डेडिकेटेड टू रानी दुर्गावती इन छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड असम। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में इन्होंने जो है वो लॉन्च किया रानी दुर्गावती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following is currently ranked as the world's wealthiest billionaire according to the annual billionaires ranking by American business magazine Forbes? Elon Musk, Mukesh Ambani, Bernard, John, Anthony Arnold and Jeff Bezos. Its correct answer is option C, Bernard, John, Anthony Arnold. Next question is, which of the following institute researchers have recently achieved an experimental breakthrough on secure quantum communication up to a distance of 380 kilometers and standard telecom fiber with a very low error rate that will be helpful in securing financial transaction and secret codes? किस इंस्टीट्यूट ने ये जो है सीक्रेट क्वांटम कम्युनिकेशन सेटअप किया? आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द 30th एडिशन ऑफ डैश मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज यानी कि सिम्बेक्स हैज़ बीन सक्सेसफुली कंक्लूडेड। सेचल्स इंडिया, सिंगापुर इंडिया, साउथ अफ्रीका इंडिया, श्रीलंका इंडिया। इस सिम्बेक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर इंडिया। सिंगापुर और इंडिया के बीच की मैरिटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज है सिम्बेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ब्रांच रिटेन इट्स नंबर 1 पोजीशन इन 2023 कंतार ब्रांच टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांच रिपोर्ट्स फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर? HDFC Bank, Infosys, TCS and Airtel. Its correct answer is option C, TCS. Next question is, which of the following country recently launched the world's first digital passport for international travel? UK, United Kingdom, United States, Finland and Australia. Its correct answer is option C, Finland ने डिजिटल पासपोर्ट जो है वो लॉन्च किया है फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी, लखनऊ यूपी, ग्वालियर MP, जयपुर राजस्थान, रीवा मध्य प्रदेश। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, where is the Statue of Equality, the largest statue of B.R. Ambedkar outside India located? New York City, Maryland, Washington DC and the Los Angeles. Correct answer is option B, Maryland. Next question है, the 2023 UN climate change यानी UNFCCC conference with the COP28 convened from 30th November 12 December 2023 in Cairo, Abu Dhabi, Dubai and Manila. Its correct answer is option C, Dubai. ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज अ न्यू स्पीकर ऑफ कैनेडाज हाउस ऑफ कॉमन्स, बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक कैनेडियन टू होल्ड द पोजीशन? एंथनी रोता, यारोस्लाव हुंका, ग्रेग फर्गस एंड वोल्दिमिर जेलेंस्की। इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रेग फर्गस। ऐसे जो क्वेश्चन है ना इंटरनेशनल अफेयर्स के, उनमें आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस आप ये वीडियोस से कवर अप कर लो क्योंकि वन लाइनर ही है, तो वो आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, तो वो सेम एज इट इज ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is to be the first country in Europe to join New Zealand which proposes ban on cigarettes for younger generation? तो फर्स्ट कंट्री कौन सी है यूरोप में जिसने न्यूजीलैंड को ज्वाइन किया है टू बैन ऑन सिगरेट्स फॉर यंगर जनरेशन? ग्रीस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following won India's first Greco-Roman medal at the Asian Games in 13 years, bagging a bronze in 87th category, 87 किलोग्राम कैटेगरी? दीपक रहेजा, अंकित कुमार, सुनील कुमार एंड विपुल कश्यप। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सुनील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्लियामेंट recently voted to join the International Criminal Court, a move that further strains the country's ties with its old ally Russia after the court issued an arrest warrant for President Vladimir Putin over events in Ukraine? Which of the following countries parliament recently voted to join the International Criminal Court? वो इनके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट निकाला गया फॉर इवेंट इन यूक्रेन के लिए? पोर्टुगल, अर्मीनिया, आइसलैंड एंड आयरलैंड। इस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अर्मीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियन ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटर TSO Elia has secured an environmental permit for Princess Elizabeth Island, the world's first artificial energy island to be located in the Black Sea, North Sea, Red Sea and Baltic Sea. Its correct answer is option B, North Sea. Next question है, recently the World Bank retained India's economic growth forecast for 2023-2024 at its biannual review. 5.7%, 6.1%, 6.3%, 6.7%. Its correct answer is option C, 6.3%. Next question is, name the renowned author and philanthropist who were recently conferred with the Global Indian Award by the Canada India Foundation? Anita Desai, Sudha Murthy, Roshni Nadar, Arundhati Roy. Its correct answer is option B, Sudha Murthy. Next question is, how many medals did the Indian contingent win
At the 19 Asian Games in Hangzhou, China, 70, 101 medals, 107 and 112. Its correct answer is option C, 107 medals. ये याद रख लेना क्योंकि स्टेट्स के अंदर ना ऐसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स से कितने मेडल्स वगैरह, तो नंबर्स याद रखना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फोकस ऑफ क्लाउडिया गोल्डन्स रिसर्च? क्लाउडिया गोल्डन्स रिसर्च विच लेड टू हर बीइंग अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स. तो स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर जनरेटिंग attosecond pulses of light, analyzing the economic impact of 2007 to 2008 financial crisis, advancing the understanding of the gender gap in the labor market, and investigating the modification of nucleoside bases और mRNA vaccine. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, एडवांसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेंडर गैप इन द लेबर मार्केट. तो इसने इसके बारे में स्टडी किया था, जेंडर गैप के बारे में, द लेबर मार्केट के बारे में, इसलिए इसको जो है नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स में. तो क्लाउडिया गोल्डन रिसर्च इसका ये था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द 2023 नोबेल पीस प्राइज बाय द नॉर्वेन नोबेल कमिटी? नरगिस मोहम्मदी, एलेक्स कौंसल, मीर खातून पीरजादा एंड सलमान बिन सुल्तान. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नरगिस मोहम्मदी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following was awarded the 2023 Nobel Prize in Literature for his innovative plays and prose which give voice to unsayable? Annie Aronnax, Peter Handke, John Fosse and Mongi Buendi. Its correct answer is option C, John Fosse. Next question है, what was the specific reason for awarding the 2023 Nobel Prize in Chemistry to Mongi J. Buendi, Louis Bruce, Alexei I. Ekimov? इनको क्यों मिला था नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में, क्या रिसर्च के लिए मिला था, वो क्वेश्चन है. तो ऑप्शंस आर फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, फॉर द पाइनिंग वर्क इन द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, एंड फॉर द रिसर्च ऑन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज. इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स के बारे में मिला था. क्वांटम डॉट्स के बारे में उन्होंने केमिस्ट्री में स्टडी की थी, दैट्स व्हाई दे गॉट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2023 इज अवॉर्डेड फॉर डिस्कवरिंग अ न्यू एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, generating attosecond pulses of light for studying electron dynamics, developing a new theory of relativity, and inventing a groundbreaking medical technologies. Correct answer is option B, generating attosecond pulses of light for studying electron dynamics. Next question है इसका, who among the following were recently awarded the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine for the contributions to the mRNA vaccine development against COVID-19? Albert Einstein and Marie Curie, Kathleen Karaoke and Drew Weissman, Alexander Fleming and Jonas Salk, and James Watson and Francis Crick. Its correct answer is option B, Kathleen Karaoke and Drew Weissman. राइट, तो इनको मिला था नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन फील्ड के अंदर. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चंस थे पूरे 51 से लेके 100 तक. तो इस वीडियो को भी आप कवर अप कर लीजिएगा. 2 वीडियोस जो हैं, फर्स्ट वीडियो भी आ चुका है, सेकंड वीडियो ये है, तो आप इन सारी वीडियोस को कवर अप कर लेना, तो आपके अक्टूबर के करंट अफेयर्स डन हो जाएंगे. फिर मैं चलाऊंगी नवंबर को हो गया, फिर सितंबर के आएंगे, फिर अगस्त आएंगे. बाकी शॉर्ट्स को आप फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े. बस इस चैनल पर आपको सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा. और अपनी जो बुक्स है, जो मैंने आपको बुक लिस्ट बताई है, उस पर स्टिक रहें. मैं नेक्स्ट शॉर्ट्स में आपको बुक लिस्ट के बारे में बताऊँगी, आपको क्या पढ़ना चाहिए एग्जाम्स रिलेटेड. सो या चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें. थैंक यू.